Yeah, so we are online now. Yeah, yeah. So good morning, friends. Good morning to all, and welcome in today's Sustainable Saturday session. I'm your host Siddharth. So today's session is a little bit different because we are doing some interesting activity in Sustainable Saturday session. So I'm really very happy to announcing that we started Unsung Heroes series in Sustainable Saturday initiatives, where we connect with people around the India who are working for environmental conservation and their protection as a part of their passion only. So this will be a platform for these unsung heroes to showcase their efforts and that they are putting into the greener future for all of us. So today we have Mr. Milind Girdhari for us. So he is first unsung hero of this series, and he is from Aurangabad, Maharashtra. Mr. Milind has completed his MA, B.Ed and D.Ed and currently working as a primary teacher in a Zilla Parishad school, Aurangabad, Maharashtra. He has interest in nature, biodiversity, unique and rare tree and their conservation. So he does not have any degree in a botany or environment, but he has deep knowledge about the plant identification and their medicinal value. So he is also guiding many people on Facebook and other social media platforms to identify the trees and their medicinal uses, their traditional uses. So this is very interesting knowledge that Mr. Milind Girdhari has. So welcome Milinji in today's Sustainable Saturday session, and I'm very happy you are our first unsung hero. And Milinji, I would like to start this conversation with a basic question that about your interest in environmental conservation. What motivates you? Because you are a teacher of in Zilla Parishad schools, but still you are doing very great work for conservation and identification. As a taxonomist, you are working. So, what motivation do you have to for this conservation thing? Actually, nature itself is my motivation, and I was in a rural area, and in my childhood, I used to go in a Jilla Parishad school, and it from childhood I have that attraction towards nature. Okay, great. So, मिलिंद जी, मुझे ये भी पूछना है कि यू डोंट हैव एनी डिग्री इन बॉटनी, कोई इन्वायरमेंट साइंस में आपने कोर्स किया नहीं है. सो आपको इतना नॉलेज कैसा है? मतलब मैं भी देखता हूँ आपके जो पोस्ट होते हैं फेसबुक पे या फिर अदर सोशल मीडिया पे, सो आप बहुत सारे लोगों को गाइड करते हो. नियर अबाउट ऑल ओवर महाराष्ट्र में सह्याद्री घाट में जो भी स्पीसीज मिलती है उसका आइडेंटिफिकेशन आप करते हो, उसका नॉमेनक्लेचर और बहुत सारी चीजें करते हो, लोगों को गाइड करते हो. तो ये सारा नॉलेज आपने कैसा गेन किया? अभी मैंने कहा कि मैं रूरल एरिया से हूँ और बचपन से मुझे घूमने की आदत है. मैं स्कूल कम गया हुआ और घूमा ज्यादा हूँ नेचर में, तो आइडेंटिफिकेशन तो वहां से आया. और रहा बॉटनिकल नेम्स है जो है, तो मैंने अभी सीख रहा हूँ मैं भी, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं. लेकिन आइडेंटिफिकेशन एक अलग चीज है और बॉटनिकल नेम उसका ढूंढना अलग चीज है. वो दोनों अलग अलग है. तो वो आसान है बॉटनिकल नेम, लेकिन आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत अलग स्किल है. तो मैंने वो बचपन से मुझे है उसकी गति है उसमें, और रूरल एरिया के वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ है. और अभी गए 10-12 साल से मैं यहाँ के एक नेचर लेवर है डॉक्टर किशोर पाठक, उनके साथ मैं बहुत घुमा वो पंछी बर्डिंग के लिए, बर्ड वॉचिंग के लिए. तो उसका भी बहुत फायदा मुझे मिला है कि मैं उसका क्या सर्वेक्षण जो है वो किया है, और रेयर और जो इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल ट्री स्पीसीज है वो मुझे ध्यान में आए कि क्या क्या है हमारे इस सेंचुरी में, जो गौताला बर्ड सेंचुरी है. तो अभी चल रहा है उस पर काम. अच्छा, सो आपका बैकग्राउंड, आप रूरल एरिया से हो, इसलिए आपने जंगल पहले से देखे, बचपन से आप जंगल देखते आ रहे हो, जंगलों में घूमते आ रहे हो, पेड़ों के साथ आपका लगाव है और इसी लगाव को आपने आपके पैशन में कन्वर्ट किया है, ऐसा आपकी बातों से लग रहा है. एंड दैट इज रियली ग्रेट, क्योंकि
बहुत सारे लोग जंगल में, बहुत सारे लोग रूरल एरिया में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, बट सबको ये सेंस नहीं होता है जो आपने सेंस किया, या फिर जो आप प्रकृति के इतने करीब गए हो, या फिर आपने सोचा कि प्रकृति से सीख के ही हम प्रकृति को बचाएंगे। सो इट्स रियली अप्रिशिएबल मिलिंद जी। मिलिंद जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने कौन सी रेयर एंड इंडेंजर स्पेसीज को आइडेंटिफाई किया है या फिर उस पर काम किया है, क्योंकि मुझे पता है कि आपने बहुत सारी कंजर्वेशन पे स्ट्रेटेजीज पे काम किया है और कुछ रेयर स्पेसिस पे आप अभी भी काम कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को ये जानना चाहिए कि कौन सी स्पेसिस ऐसी है मराठवाड़ा में, स्पेशल ड्राई लैंड एरिया में। मैं आपका प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। हाँ, आप हमें इस पे मार्गदर्शन कीजिए कि जो स्पेसिस आपने आइडेंटिफाई की है। मैंने एक ये ऑब्जर्वेशन है मेरा कि IUCN जो है वो असेसमेंट करती है, और उसका जो असेसमेंट है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन, एक स्पीसीज है उसका वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है उस पर निर्भर है। लेकिन अभी ट्रेंड शुरू होने वाला है कि जो लोकली एंडेंजर्ड है वो भी स्पीसीज मैं अभी ऐसा मेरा विचार है कि वो असेसमेंट जो है लोकल पॉपुलेशन के ऊपर निर्भर होना चाहिए। तो मराठवाड़ा के लिए जो भी कुछ स्पीसीज है जो लोकली इंडेंजर्ड कह सकते हैं हम, वो आपके सामने है, अभी वो लिस्ट है कि वो स्पेसिफिक एरिया में है, बाकी है अभी। तो उसका कंजर्वेशन हमने शुरू किया है, और मेरे साथ बहुत मेरे मित्र है जो कोई प्रोफेशन बाय प्रोफेशन कोई डॉक्टर है, टीचर भी है, उसमें कोई फार्मर्स भी है, तो जुड़ गए हैं और चालू है काम इस पर। तो IUCN, मैंने ऐसा सुना है कि IUCN भी लोकल पॉपुलेशन का विचार करके वो उसका असेसमेंट होने वाला है। राइट। तो ये आपके सामने जो चित्र है वो है मोखा, बोलते हैं उसको मराठी में, स्क्रेबेरा सोइटनियस। तो वो बहुत कम हो चुका है, और उसमें एक ऐसा भी पेड़ बहुत बड़े हैं लेकिन उसको फ्रूटिंग नहीं हो रहा है। तो उसका कारण नहीं अभी ढूंढ पाए हम, लेकिन इसका संख्या बहुत कम हो गया है। तो इसके भी हमने बीज कलेक्ट करके पौधे बनाए हैं। अच्छा, तो जैसा अभी मिलिंद जी आपने बताया कि IUCN भी वर्क कर रहा है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि कौन सी स्पेसिस इंडेंजर कैटेगरी में आ रही है, रेड लिस्ट में आ रही है। सो कम्युनिटी डेफिनेटली कोई भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट करने के लिए हमें कम्युनिटी की हेल्प चाहिए ही होगी। सो उस अकॉर्डिंग आप भी औरंगाबाद में कम्युनिटी को साथ में लेके, फार्मर्स को साथ में लेके काम कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है मुझे लगता है। मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। यस, इसको बेहरा कहते हैं। ये भी पहले हमें भी मालूम नहीं था कि ये मराठवाड़ा में है, मराठवाड़ा रीजन में, ये विदर्भ में है, और इसको बेहरा बोलते हैं। वो लिस्ट बताइए। क्लोरोजाइलॉन सोइटनिया इसका बॉटनिकल नेम जो है, और ये भी बहुत पॉपुलेशन इसकी बहुत कम हो गई है। तो इसका भी कंजर्वेशन चालू है, सीड कलेक्ट किए हैं, और उसमें कुछ समस्या ये हो रही है कि हम सीड कलेक्शन जो है वो बहुत टाइम बाउंड प्रोग्राम रहता है, तो कभी हम नहीं पहुंच पाते। तो एक है समस्या की ज्यादा से ज्यादा सीड कलेक्ट होने चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। ये जो सामने आप देख रहे हैं वो एरेओलिना है, और बोथी कहते हैं उसको मराठी में। ये भी बहुत रेयर हो चुका है, और इसके हमने सीड कलेक्ट करके पौधे बनाए हैं। ये इसके लीव्स है, पत्ते हैं। ये पाटला या पाडल बोलते हैं इसको, स्टीरियोस्पर्मम चिलिनोइडिस। यही बहुत हम कह सकते हैं कि ये एंडेंजर्ड हो चुका है, और इसका कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। और ये दशमूल जो आयुर्वेद में संकल्पना है उसमें का एक पेड़ है। आगे बताइए। इसके पत्ते हैं लीव्स, पाटला के।
बहुत कम पेड़ अभी बाकी है। तो हमने बहुत सारे सीडलिंग्स बनाए हैं और बांट रहे हैं उसको। जो फार्मर्स है या ट्री लवर्स है उनको दे रहे हैं। ये इसके पॉट्स है और बीज भी देख रहे हैं आप। मिलिंद जी, मतलब आप ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि जो भी स्पीसीज है उसके सीड्स आप कलेक्ट करते हो और कम्युनिटी में वो स्प्रेड करते हो, कम्युनिटी को ग्रो हाँ करने को बिल्कुल देते हो, राइट? बिल्कुल सो बिल्कुल। और कुछ ऐसे आइडियाज है क्या कि ठीक है हम फार्मर्स को देंगे, कम्युनिटीज को देंगे, बट हम कुछ कॉलेजेस में वो दे सके और वहां हाँ पे कॉलेज बॉटनिकल को भी गार्डन दे बना रहे के? हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज जो है बॉटनिकल, जिन्होंने बॉटनिकल गार्डन के लिए कुछ रिजर्व रखा है एरिया, उनको भी दे रहे हैं हम। अभी एक उदगीर में कॉलेज है, उनको बहुत सारे पौधे हमने भेजे हैं, यही ऐसे रेयर ट्री स्पीसीज के। यस यस। क्योंकि हाँ मैं भी जब देखता हूँ कि जो बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं कॉलेजेस में, जो टिपिकल गार्डन्स होते हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर चार पांच ऐसी स्पेसीज होती है कि जो मतलब रटी रटाई हुई होती है कि हाँ ये इंडेंजर स्पेसीज है या फिर ये रेयर स्पेसीज है। बट मुझे लगता है कि जो स्पेसीज आप बता रहे हो वो ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी उस बॉटनिकल गार्डन में, बिकॉज इसका हाँ नॉलेज बहुत कम लोगों को है। जैसा आप बराबर। नेचर लवर हो, आपने आइडेंटिफाई किया, खुद आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन सी स्पीसीज कम है, कौन सी स्पीसीज रेयर हो रही है। तो एक्चुअली मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करने के लिए। सो सही है। दैट्स रियली नाइस कि अगर हम कॉलेजेस में बॉटनिकल गार्डन्स में ये स्पीसीज इंट्रोड्यूस करवा पाए तो एक अच्छा एक्सिटिव कंजर्वेशन मुझे लगता है यहाँ पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक आइडिया कैल्सिना है, वारंग बोलते हैं उसको। ये भी, इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। ये वेस्टर्न घाट में भी है और इधर डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी है। लेकिन ये डेसिडुअस फॉरेस्ट में बहुत कम पाया जा रहा है। तो इसका भी पॉपुलेशन बहुत घटा है और अभी चालू है, सीडलिंग बनाना चालू है। जी। तो ये सो मालवासी मिलिंद ग्रुप का जी, बहुत सुंदर, मधुमक्खियां के लिए भी बहुत जरूरी एक ट्री स्पीसीज है। अच्छा। मिलिंद जी, आपको क्या लगता है कि ये जो ट्री स्पीसीज रेयर होते जा रहे हैं या फिर कम होते जा रहे हैं, इसका रीजन क्या है? अभी क्या है, फॉरेस्ट का ही जो एरिया है वो कम होता जा रहा है, और ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है, और सिटी एरिया के जो नजदीक जो जंगल फॉरेस्ट एरिया है उसको भी वो थ्रेट हो रहा है, आदमी से, ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत हो रहा है। और इंक्रोचमेंट भी बहुत है, खेती के लिए जमीन कम पड़ रही है, और फॉरेस्ट एरिया का बहुत सारा भाग जो है एनक्रोच हो चुका है, और चालू है, वो डिफॉरेस्टेशन चालू है, कुछ डेवलपमेंट भी चालू है। और वेस्टर्न घाट में तो बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया वो प्राइवेट है, तो उनमें तो बहुत सारे फार्म हाउसेस, रिसोर्ट्स, बाकी प्रोजेक्ट्स चालू है। तो इसके वजह से बहुत सारी जो ट्री स्पीसीज है वो अभी उसका वो एंडेंजर्ड हो चुकी है। यस। तो स्पेसीज इंडेंजर्ड होने में इंसानों का, ह्यूमंस का बहुत बड़ा हाथ है, हम ऐसा कह सकते हैं। और मैंने भी वो देखा है कि जो वेस्टर्न घाट के केवल कुछ पैचेस है, ह्यूमन का ही है, ह्यूमन ह्यूमन का ही है। हम ही यस यस उसको यस। ये है, तो मतलब जवाबदार है। हमसे हमसे धोखा है इस स्पेसीज को। सिर्फ या मैंने भी सिर्फ देखा है आदमी कि से ही धोखा है। यस, मैंने भी देखा है कि बहुत सारे जो पैचेस है वेस्टर्न घाट्स में, वहां पे अभी लोगों ने बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट बनाए हैं। मतलब लोग एज हाँ एंटरटेनमेंट के लिए वहां पे जाते हैं, बट सही है, एंटरटेनमेंट के साथ वो वहाँ की डाइवर्सिटी को भी मतलब डैमेज करते हैं, उसको कोलैप्स करते हैं। तो सही है, मुझे सही लगता है कि हमें सेंसिबल इंसान होने की जरूरत है, कि हम रिस्पॉन्सिबल हो, सेंसिबल हो नेचर के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति। और है। और एक धोखा है, वो रिसोर्ट बनाते हैं, कुछ फार्म हाउस बनाते हैं, और वहां की जो ट्री स्पीसीज है वो कट करके ऑर्नामेंटल स्पीसीज वहां पर इंट्रोड्यूस करे, वो अलग राइट बहुत बड़ा धोखा है। तो कुछ राइट ऐसी स्पीसीज है उसमें तो वो इनवेजिव है। राइट बहुत सारे ऑर्नामेंटल स्पीसीज हम जो लगाते हैं वो नॉन नेटिव है, एक्सोटिक राइट। है वो। यस, जैसा हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे गुलमोहर है। अभी मुझे पता है कि सही है। औरंगाबाद में गुलमोहर कॉलोनी भी है, डेलोनिक्स रिजिया। बहुत सारे लोगों का वही मानना है कि गुलमोहर बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है। एक्चुअली वो पेड़ मादागास्कर आइलैंड से ओरिजिनेट है, वहां से आया है, और उसके जो रूट है वो बहुत मतलब डीप पेनिट्रेट नहीं होते, बारिश में सबसे ज्यादा पेड़ वो गिरता है। बट फिर भी लोग वही पेड़ लगाते हैं, क्योंकि जब वो नर्सरी में जाएंगे तो उनको नर्सरी वाला वही बताएगा कि ये बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है, आप ले लो।
तो इसी तरह से जो नॉन नेटिव इन्वेजिव स्पीसीज इंडिया में बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप नॉन नेटिव स्पीसीज की जगह पे, इन्वेजिव स्पीसीज की जगह पे नेटिव स्पीसीज लगाइए। जैसे फॉर एग्जांपल हम गुलमोहर की जगह पे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा लगा सकते हैं, पलस का ट्री। सही है, सही है। बायोडाइवर्सिटी भी मिलेगी हमें, एक अच्छा कलर का फ्लावर भी मिलेगा रेड कलर का, और इकोलॉजी के लिए भी वो अच्छा रहेगा। बट ये तो बड़ा प्रॉब्लम है कि इन्वेजिव स्पीसीज बढ़ते जा रही है और लोग वही लगा रहे हैं सुंदरता ब्यूटिफिकेशन के नाम पे। सही है। हमारा जो राज्य पुष्प है, स्टेट फ्लावर, लार्जेस्ट्रोमिया स्पेसियोसा, वो भी बहुत सुंदर है। वो मानसिकता हम बदलने चाहिए कि फॉरेन के जो पेड़ है, एग्जॉट नॉन नेटिव जो है, वो ये सुंदर नहीं है। हमारे स्पीसीज बहुत सुंदर है, उससे ही ज्यादा स्पीसीज बहुत सुंदर है। अगर हम अमलताश की बात करें तो अमलताश का फ्लावर तो मतलब मेरा मोस्ट फेवरेट फ्लावर इज अमलताश। So, yes, कैशिया, there are lots of options we have, but प्रॉब्लम वही है कि जब नर्सरी वाले भी क्या करते हैं, जब कोई नर्सरी में जाता है तो नर्सरी वाले भी उसको एक्सोटिक स्पीसीज बताते हैं, क्योंकि उसमें उनका मार्जिन वगैरह होता है ठीक ठाक, और वो नेटिव स्पीसीज वो रखते नहीं है। सो वो भी एक प्रॉब्लम है। एंड जब इसमें और एक समस्या है, जो सुंदर है हमारे स्पीसीज बोल सकते हैं आप, तो उसके जो सीडलिंग है वो आसानी से अवेलेबल नहीं है। क्योंकि उसके सीड भी अवेलेबल नहीं होते, रिस्ट्रिक्शन है उस पर सीड कलेक्शन के लिए, या फिर वो लोगों को मालूम नहीं है, ऐसे भी है। तो नहीं रखेंगे, सीडलिंग क्यों रखेंगे अगर लोग मांगते ही नहीं, डिमांड ही नहीं है उसका। तो अभी ये हमारे यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जैसे लोगों का, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी वो यह है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने उसका जो है पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहिए, और सीडलिंग अवेलेबल करने की जवाबदेरी देखी, लेकिन उनकी है। वो भी है, नर्सरी वाले ही नहीं, जो नर्सरी जो है फॉरेस्ट की नर्सरियां है, नर्सरीज, तो उसमें भी ये अवेलेबल हो सकता है, लेकिन नहीं है अभी, दुर्भाग्य से। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और गवर्नमेंट का भी अच्छा रोल हो सकता है। हम तो इसमें काम कर ही रहे हैं, और मुझे लगता है कि लोग अगर अवेयर होंगे, अगर उनको पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं है, तो जब उनको पता ही नहीं है तो वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर लोगों को पता चलता है कि हाँ, गुलमोहर की जगह पे हम ये लगा सकते हैं या ये ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वो खुद जाके मांगेंगे भी, फॉरेस्ट को भी मांगेंगे, नर्सरी को भी मांगेंगे। सो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है। हाँ, नहीं, हमारा उस पर भी काम चल रहा है, हम पॉपुलर बना रहे हैं, वो जो स्पीसीज है उसका पॉपुलराइजेशन कर रहे हैं हम, और हो रहा है। ये एक बढ़िया, हाँ, इसको गनेर बोलते हैं, गनेर, कोक्लोस्पर्मम रिलीजियोसम, या सोनसावर भी बोलते हैं उसको मराठी में, और ये बहुत सुंदर स्पीसीज है, लेकिन बहुत कम हो चुका है ये, रियली इट इज इंडेंजर्ड स्पीसीज। Maratha, even in Western Ghat or in semi-deciduous forest, it is very rare. This tree species can be seen around Pune and some deciduous forest in Marathwada, even in Vidarbha also, but very rare, very rare है वो। जी, बहुत कम पानी और बहुत सुंदर है। और हाँ, इसके सीड जो है वो आसानी से जर्मिनेट नहीं होते, ये भी कारण है। और इसका एक थ्रेट भी है, टर्माइट भी इस पर आता है, और वो चला सूख जाता है पेड़, ऐसा भी हमने ऑब्जर्व किया है। जी, ये जो सर ये अभी सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कौन सी स्पीसीज है? ये वही है, कोक्लोस्पर्मम जो है, गनेर, सोनसावर के फ्रूट्स है, और ये हमने सिटी एरिया में लगा रखा है, और उसको फ्रूट्स अभी सीड दे रहे हो बहुत सारे पेड़। ये वही है, पहले जो आपने देखा है वो मोक्ष बोलते हैं संस्कृत में, वही है। ये अल्बिजिया अमारा है, और ये सिर्फ एक ही जगह मिला है हमें, गौताला सेंचुरी के है, उसका पॉपुलेशन वहां पर है, लेकिन अन्य फॉरेस्ट में जो दूसरे फॉरेस्ट जो है
वहां पर इसका पॉपुलेशन बहुत कम है और इसका भी अभी हम कर रहे हैं, उसका कंजर्वेशन हो रहा है, अभी चालू है। नॉर्मली अल्बिजिया के दो स्पीसीज मैंने आइडेंटिफाई किए, औरंगाबाद में बहुत देखने को मिलती है, मराठवाड़ा में। एक अल्बिजिया प्रोसेरा है और अल्बिजिया लेबैक है, काला शिरीष और व्हाइट तो शिरीष। ये और दो स्पीसीज है, दो स्पीसीज है। एक ए है अल्बिजिया अमारा, हमारा, और एक कृष्ण शिरीष बोलते हैं, अल्बिजिया ओडोराटिसिमा। ओडोराटिसिमा, ये राइट बहुत राइट। कम पाए जाने वाले हैं, यस यस दो स्पीसीज जो है। यस यस। तो ये दो स्पीसीज का कंजर्वेशन और इसका पॉपुलेशन बढ़ाने की सच में जरूरत है। बिल्कुल, ये वही है, वो अल्बिजिया अमारा। ये बबुल जैसा दिखता है और ये ओडोराटिसिमा है, हम आप देख रहे हो स्क्रीन पर। ये बहुत कम हो चुका है अभी। फ्लावर। हाँ, ओडोराटिसिमा कृष्ण शिरीष बोलते हैं इसको, या काला शिरीष भी बोलते हैं। अच्छा, और बहुत सारे अभी तो मतलब वो सेमेना सेमेंस जो है उसको ही सब सीरीज हाँ, कंसिडर वो करते हैं। रोड साइड पे वही दिखता है और वो वही बहुत, दिखता है। हाँ, उसके मजबूत नहीं रहते उसके जो ब्रांचेस है, और वो थोड़ा भी तूफान आया तो गिर जाता है। हाँ। ये बहुत सुंदर स्पीसीज है, आप देख रहे हो, कौशी बोलते हैं उसको मराठी में। और फर्मियाना कोलेटा, ये भी एक स्टेरिकुलिया का ही एक फैमिली का मेंबर है, और इसका सिनोनिम भी स्टेरिकुलिया कोलोरेटा है। और ये आगे का बताइए स्लाइड। हाँ, इसके फ्रूट्स है ये, आगे। हाँ, ये इसके फ्रूट्स है, और वो बीज भी देख रहे हैं आप। जी जी। हाँ, ये जो देख रहे हैं आप निर्मली स्ट्राइकनोस पोटेटोरियम, ये बहुत कम है मराठवाड़ा रीजन में, और इसका भी कंजर्वेशन करे हैं हम, सीडलिंग बनाए हैं। और हमारे एक मित्र है शिवशंकर चापोले, उन्होंने बहुत काम किया है इस पर। इसके बहुत कम पेड़ है मराठवाड़ा रीजन में, और इसका बीज जो है वो औषधि है, मेडिसिनल यूज है उसका। जी। सो बहुत सारे रेयर ये और भी मेडिसिनल ये प्लांट है कि निर्मली, जिसका हाँ, कंजर्वेशन करना है। अभी जो देखा है निर्मली, उसका बीज है ये काकड़ बोलते हैं इसको, गारुगा पिनाटा। एक गूगल का यानी बरसेरासी फैमिली का मेंबर है। ये भी बहुत कम पाया जाता है पेड़, और ये नदी किनारे ही ज्यादा दिखता है, ज्यादातर नदी किनारे होता है गारुगा पिनाटा काकड़। ये डीके मैली बोलते हैं इसको, ये भी बहुत कम है मराठवाड़ा रीजन में। हाँ, डिकेमाली के तो हाँ, बहुत सारे गार्डनिया, मेडिसिनल यूजेस भी है। हाँ, गार्डनिया रेजिनिफेरा, ये इसका फल है। ज्यादा हाई रेनफॉल में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इधर भी मराठवाड़ा रीजन में भी है वो, लेकिन कम है उसकी संख्या। एक काला शिरीष बोलते हैं, काला शीशम बोलते हैं, डालबर्जिया लैटिफोलिया। ये भी इसका वल्नरेबल है, ये रेड लिस्टेड ट्री स्पीसीज है, और अच्छा आईयूसीएन ने इसको वल्नरेबल ये दिया है स्टेटस। अच्छा अच्छा। मुझे लगता है कि इसका भी वुड बहुत सारे इसमें यूज होता होगा, हाँ, फर्नीचर में इसमें, वो, क्योंकि हाँ, यस वुड वैल्यूबल, आर्बोरिजियस स्पीसीज। राइट राइट। बराबर। ये उसके लीव्स है डालबर्जिया लैटिफोलिया के। हाँ, ये अंकोल है, अंकोल बोल के है। ये भी बहुत कम, ये नदी किनारे ही दिखता है, और इसकी भी पॉपुलेशन बहुत कम है मराठवाड़ा रीजन में। तो इसके भी हमने सीडलिंग बनाए हैं। ये भोरसाल है, भ्रमर छल्ली बोलते हैं, भोरसाल। ये सिर्फ गौताला सेंचुरी जो है वहां पर है, दूसरी जगह नहीं मिला है। हेमोनोडिप्टियन ओरिजिन्स, ये फल है उसके। एट द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी आई थिंक। हाँ, यस यस। इसके सीडलिंग ये अभी मिला है, ये एक पेड़ स्टेरिकुला विलोसा। इसके सिर्फ 5-6
स्पेसिमन मिले हैं, और इसके अभी इस साल तो नहीं, हम उसके सीड्स नहीं कलेक्ट कर पाए, लेकिन चलो उस पर काम, बाहर से ला रहे हैं हम उसके सीड्स। अभी ये जो देख रहे हैं फूल जो है, ये इसमें से कुछ स्पीसीज जो है वो वेस्टर्न घाट में है, लेकिन बहुत सारे जो स्पीसीज है वो मराठवाड़ा में मिलते हैं। तो कैपेरेसी जो है बहुत सुंदर फूल वाली फैमिली है, तो उसका भी कंजर्वेशन कर रहे हैं हम। इसमें एक वरुण वायवर्ण बरना भी बोलते हैं, तो ऊपर का जो है वो है, उसका पॉपुलेशन बहुत ही कम है, और नीचे वाला जो फूल है वो कड़ाबा फ्रूटिकोसा या काली टाकड़ी बोलते हैं उसको मराठी में, औषधि पेड़ है, श्रब है वो। थैंक यू। सो वाह, बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जैसे जो आपने बताया मिलिंद जी, जो रेयर हो रहे हैं, और इतना सारा नॉलेज आपको है कि वो कहाँ पे मिलते हैं, बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, और उसका कंजर्वेशन के लिए आप क्या क्या कर रहे हो। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जो एफर्ट आप कर रहे हो, जो एफर्ट नॉर्मली कंजर्वेशन फील्ड के लोग करते हैं, इन्वायरमेंट फील्ड के लोग करते हैं, बट एज अ टीचर, प्राइमरी टीचर होके आप बस आपका पैशन फॉलो करके, आपका इंटरेस्ट है इसलिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो और एक्सिटिव कंजर्वेशन आप कर रहे हो। सो इट्स अ रियली रियली वेरी अप्रिशिएबल। एंड बहुत सारी स्पेसिस जो मैंने भी देखी, मुझे भी लगता है कि हाँ, इसको भी हमें कंजर्वेशन अभी करना ही चाहिए। सो डेफिनेटली आप कम्युनिटी और बहुत सारे अगर लोग हम साथ में आएंगे इन्वायरमेंट लेवल, सो इन स्पेसिस को हम बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि रेड लिस्ट में जाने से पहले हमें इस पे काम करना चाहिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो रेड लिस्ट में जा रहा है फिर उसको उस पे काम हो रहा है, उसका इंसिटिव एक्सिटिव कंजर्वेशन हो रहा है, बट द थिंग इज दैट कि पहले ही अगर हम उसको रेड लिस्ट में जाने से रोके, सो वो सबसे अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, ये ऐसा मुझे लगता है। सही है जी। मिलिंद जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे अभी आपने बताया कि आप प्राइमरी टीचर हो, जिला परिषद स्कूल में बच्चों को सिखाते हो, आप भी जिला परिषद स्कूल से सीखे हो, एंड डेफिनेटली आपको एक लगाव होगा बच्चों से या फिर एक उस वातावरण से। तो जब आप बच्चों को सिखाते हो मराठी, हिंदी और अदर सब्जेक्ट, तो उस समय आप उनको ये पर्यावरण संवर्धन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पे भी कुछ बातें बताते हो क्या, आपके एक्सपीरियंस से? बिल्कुल बिल्कुल, मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ, तो अभी उस पर भी हम इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल कैसे अपना सकते हैं, उस पर भी मेरा काम चालू है। और मैं अक्सर बताता हूँ मेरे स्टूडेंट को कि हम पर्यावरण स्नेही जो इको फ्रेंडली कैसे बन सकते हैं। या अभी प्लास्टिक पे भी काम चल रहा है, प्लास्टिक का जो है बहुत मिसयूज हो रहा है उसका, तो जो 3R है हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि रिड्यूस, रीयूज है और रिसाइकल, उस पर काम चल रहा है। राइट राइट। और मुझे लगता है कि अगर बच्चों के माइंड में ये चीज अगर हम बिठा सके कि देखो, हमें प्लास्टिक ज्यादा यूज नहीं करना है, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीनी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बचानी है, पानी बचाना है, अगर अभी से हम ये चीजें उनको सिखाए, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में सस्टेनेबल प्लैनेट का जो हम एक ख्वाब देखते हैं, एक ड्रीम देखते हैं, वो पूरा हो सकता है। सही है। डेफिनेटली। एंड मिलिंद जी, जैसा अभी आप हमारे पहले अनसन हीरो हो कि जो मतलब जिसके पास ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, बट डिग्री से कहीं गुना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है। और मैंने देखा है फेसबुक पे जब मैं आपकी पोस्ट पढ़ता हूँ, तो आप इतने सारे लोगों को, इतने सारे स्टूडेंट को आप गाइड करते हो, उसका टैक्सोनॉमिकल फीचर्स बताते हो, बहुत सारी, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि डिग्री होना जरूरी है क्या? अगर इतना सारा एक्सपीरियंस रहने के बाद तो कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। सही है। और वो जो सोशल मीडिया है, मैं उसको तो वो स्कूल ही है एक प्रकार की, हमारे लिए स्कूल है वो, और हम लोगों को बता रहे हैं कि ये इसका कंजर्वेशन करो, और हम लोग जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं। तो उसका बहुत अच्छा उपयोग हम कर रहे हैं। और मेरे बहुत सारे मित्र है जो वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक विद इन वन स्ट्रोक हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं।
जी एब्सोल्युटली वही होता है कि सोशल मीडिया का हम कितना पॉजिटिव यूज करवा सकते हैं, कर सकते हैं। सही है। सो उसमें एक पावर है कि, बट डिपेंड करता है कि हम यूज किस तरीके से कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो मिलिंद जी, आपको क्या लगता है कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए? क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग हैं कि जिनको मतलब नेचर से इतना लगाव नहीं है, या फिर वो पेड़ काटते समय कभी सोचते नहीं है। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को पर्यावरण संवर्धन करने के लिए? पहले हम सेंसिटिव बने नेचर के बारे में, और हम हमारा ही हम हमारा ही सोचते हैं, सेल्फिश हो रहे हैं हम। हमें जो पेड़ अच्छे लगते हैं वही लगाते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बायोडायवर्सिटी के लिए या इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, वही स्पीसीज हमने लगाने चाहिए। वही वही पे है, इतना भी किया तो बहुत हो गया। है क्या नहीं? ज्यादा जरूर करने की जरूर। जरूरत नहीं। यस यस, एक एक स्टेप भी हाँ अगर हाँ। सब ले तो बहुत हो सकता है। अगर सब अभी हम सारे लोग हनी, अगर ये सोच के। हाँ हनी बीज के लिए पेड़ लगाओ, बर्ड्स के जी लिए है, बटरफ्लाईज के लिए लगाओ। बहुत बहुत होगा ये भी करना। यस। है तो क्या ना? अगर और सबने। जी इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल तो है वो, बहुत अभी नीड ऑफ द आवर है वो। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। और अगर सब ये एक एक स्टेप लेते हैं, भले ही ये मतलब बहुत बड़ा स्टेप नहीं है कि आप नॉन नेटिव ट्री की जगह ऐसी ट्री लगाओ कि जिससे बीज को प्रॉफिट मिले, बर्ड्स वहां पे आके घोंसले बना सके, तो ये ह्यूमन के लिए और पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए अच्छा रहेगा डेफिनेटली। और छोटे छोटे स्टेप से हम एक बड़ा स्टेप ले पाएंगे। अगर सबने कलेक्टिवली स्टेप लिया तो वो एक बड़ा गोल सही अचीव है, हम कर पाएंगे। जी। सही है, सही है। थैंक यू मिलिंद जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड जैसा आपका नॉलेज है, जिस प्रकार से आप काम कर रहे हो, जिस प्रकार से डेडिकेटली आप काम कर रहे हो आपके प्रोफेशन के साथ, टाइम निकालना मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है कि जब हम कोई जॉब करते हैं उसमें से टाइम, पैशन के लिए टाइम निकाल के इतना सारा काम करना मुश्किल होता है। बट स्टिल यू आर डूइंग दिस ग्रेट जॉब फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन। और आप बच्चों को भी सिखा रहे हो, बच्चों के साथ उनकी फैमिली भी डेफिनेटली सीखेगी, क्योंकि जब बच्चे सीखेंगे उनके मम्मी पापा तक वो चीजें जाती है। और आप जैसे अनसन हीरोज की हमें जरूरत है प्लैनेट बचाने के लिए। पूरी दुनिया को ही जरूरत है, मैं सिर्फ इंडिया तक नहीं बोलूंगा, सारी दुनिया को जरूरत है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट हमारे सामने आ रहे हैं, सो वो बहुत भयंकर होगा। मे बी अगले कुछ साल में जब टेम्परेचर 2% से बढ़ेगा। अभी भी मतलब बहुत सारा डिस्ट्रक्शन तो हुआ ही है। तो मुझे लगता है कि आप जैसे अगर अनसन हीरोज इस काम को अच्छे से करेंगे, और अगर हम और लोगों को मोटिवेट कर पाए, तो हम जो क्लाइमेट चेंज का जो एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा एक अपना सहयोग दे पाएंगे। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद जी, आज हमारे सेशन में आने का, शो में आने का, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो आपने रियर एंड इंडेंजर स्पीसीज बताई है। डेफिनेटली वो आपका ऑब्जर्वेशन है, आप जंगल घूमे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और मुझे लगता है कि IUCN और बाकी के ऑर्गेनाइजेशन को भी ये चीजों का थोड़ा सा ये करना चाहिए कि हाँ ये चीजें हो रही है मराठवाड़ा में, और ये मिस्टर मिलिंद गिरधारी और उनकी टीम सही है। इस पे रिसर्च कर रही है। तो आप बेसिकली उनका काम कर रहे हो। तो सही। थैंक यू वेरी मच फॉर सेविंग आवर प्लैनेट। और आप जैसे अनसन हीरोज की हमें जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। सही। धन्यवाद, धन्यवाद मिलिंद जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।